Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we will discuss about the deductions under section T16 for the Income Tax Act 1961, and this is very important video. If one person is employed, one person is salaried, is getting the salary regularly basis, then this video for you. And if you are a student, then again this is important, because when we solve the question of salary, then these deductions are allowed. Whatever the regime, choose old tax regime or new tax regime. In both regime, with certain different rules, these deductions are available. So it will be covering standard deduction, entertainment allowance, and the professional tax. So let's begin. So this is the overview of section 16. Section 16 provides specific deductions from income under the head salaries, and this is available only to the salaried employees, applicable to the salaried employees and pensioners in certain cases. Pensioner means if one person is getting the pension on regular basis means monthly basis. Every month the person is receiving the pension, then pension is taxable under the head salaries. So when the salary head is applied, then automatically this deduction will be available. But when the pension is taxable under the head other sources, income from other sources, then this deduction will not be available. Matlab the receiver is the not employee, somebody else, his family members. Pensioner is no more spouse, unmarried dependent daughter, they are getting the pension, and that is as family pension. So then this deduction is not available. So the typical rule is what? The deduction is available to the employee only and under the head salaries, and if the salary or the pension is on the regular basis. So this includes section 16 subsection 1a standard deduction. Subsection 2 is for the entertainment allowance. Subsection 3 is for the tax on the employment, which is professional tax. So first one is the standard deduction 16 1a. Flat deduction of 50,000 or 75,000. 50,000 for the old tax regime and 75,000 for the new tax regime, and this amount is same, अभी भी same है ये. Assessment year 25-26 के लिए भी, 26-27 के लिए भी. 26-27 में under the new tax regime जो minimum limit है जो exemption of income की, that is the 12 lakh. For the old tax regime same limit है, and standard deduction again same है. This is available to the again salaried employees and pensioners. No proof of expense required. ये खर्चा करने के लिए तो है ही नहीं है, ये तो फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन है. बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किस लिए दी जा रही है? सैलरीड एम्प्लॉयज को कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है. अगर एक बिजनेसमैन होता है उसको एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं कि उसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना खर्चा किया, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय को कोई खर्चा ही अलाउड नहीं है. कोई भी खर्चा होता है वो पर्सनल का खर्चा है, कोई भी एम्प्लॉय करता है वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि उसको हम कहते हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में ना सरकार एक तरह से ये कह रही है कि हमने आपको पूरे साल का खर्चा अलाउड कर दिया. ये सैलरी एम्प्लॉयड पूरे साल में 75 और 50,000 ही खर्च कर सकता है. तो बेसिकली दिस इज जस्ट टू डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी. सो दिस रिड्यूसेस द सैलरी ऑटोमेटिकली. टैक्सेबल सैलरी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली है. जैसे ही सैलरी वाला हेड लगेगा आईटीआर फॉर्म में, जो भी हमने सैलरी वाला शेड्यूल चूज करना है, सैलरी डाली जाएगी तो नीचे ही ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है. हमें खुद से बताने की जरूरत नहीं होती. बताना क्या होता है कि कौन सा टैक्स रिजाइम है. जब जनरल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल भरा जाता है तो उसमें बताना होता है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम करना है कि न्यू. डिफॉल्ट जो है न्यू है, डिफॉल्ट न्यू हो चुका हुआ है लास्ट ईयर से. अगर ओल्ड चूज करना है तो वी हैव टू सिलेक्ट, एंड इफ देयर इज अ बिजनेस हेड तो फॉर्म भी भरना पड़ेगा. एक साल पहले 15 सितंबर लास्ट डेट होती है, उसमें फॉर्म भरना होता है 10EA टू चूज दी टैक्स रिजाइम. अगर वो नहीं भरोगे तो डिफॉल्ट न्यू ही रहेगा. नेक्स्ट है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस. रिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों को मिल सकता है, प्राइवेट को भी गवर्नमेंट को भी. टैक्सेबल दोनों के लिए, फुली टैक्सेबल अलाउंस है. प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी, लेकिन डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलनी है नीचे अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, एंड दिस इज अलाउड एज लीस्ट ऑफ द 3 लिमिट. 3 लिमिट है, 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड. इन तीनों में से जो कम है उसमें से मिलेगी डिडक्शन. जो लीस्ट होगा वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट को नहीं मिलेगी. Professional tax. This tax is levied by the state governments
ऑन द एम्प्लॉयमेंट। तकरीबन हर स्टेट का है इंडिया में, हर स्टेट लगाती है। तो प्रोफेशनल टैक्स की मिलती है इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉई, दोनों के केस में। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ऊपर ऐड होना है, नीचे माइनस होना है। अगर एम्प्लॉई पे कर रहा है तो सीधा नीचे माइनस होना है, तो ऊपर ऐड नहीं ना होगा, क्योंकि एम्प्लॉई पे कर रहा है तो बेनिफिट एम्प्लॉयर वाले ऐड होने होते, तो बेनिफिट तो हुआ नहीं। सो मैक्सिमम अलाउड फॉर डिडक्शन इज 2500 है। अवेलेबल ओनली द अमाउंट एक्चुअली पेड। मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन 2500 है। 2500 से कम पे करोगे तो उतनी डिडक्शन है, अगर 2500 से ज्यादा पे करोगे तब भी 2500 की डिडक्शन है। तो मैक्सिमम 2500 लिमिट है, इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। इफ पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द सैलरी। ऐड होगी क्योंकि बेनिफिट, उसका खर्चा, एम्प्लॉई का खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आके माइनस हो जाएगी। एग्जाम्पल है 6 लाख सैलरी अक्रॉस, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ओल्ड टैक्स डिजाइन, अगर न्यू करेंगे तो 75,000। ठीक है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लेते हैं तो 6 लाख का 20% ज्यादा आ जाएगा, 5,000 कम है, एक्चुअल हमें दिया नहीं हुआ तो 5,000 हमने ले लिया जो है डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की। प्रोफेशनल टैक्स 2500, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 5,42,500। नाउ देयर इज अ पॉइंट, अगर ये न्यू टैक्स डिजाइन होता तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी थी और प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस भी नहीं मिलनी थी। Summary of the section 16, standard deduction है 50 और 75, old new whatever the regime is chosen, then entertainment allowance है 3 limits में जो लीस्ट होगा वो मिल जाएगी, और professional tax जो actually पे होगा वो मिलेगी। So thank you everyone, this is all about the standard deductions available under the section 16 for the salaried employees. So if you like the video, you get new things to learn, subscribe the channel for more tax concepts and for more updated videos, upcoming videos. You can leave the question in the comment section. Do like and share the channel. Thank you very much.